Good morning, children. How are you all? Fine? Okay, very good. Okay, so today we are going to read English grammar. Okay, and in English grammar, I am going to make you understand chapter number 6, and the name of the chapter is pronouns. Okay, so today all of you are learning pronouns. So dear children, all of you can see in your English grammar textbook page number 38. Okay, page number 38, chapter name is pronouns. Yes, so let's start the chapter. Read these sentences. Okay, read these sentences. Vinay will go to Nepal. Vinay will go to Nepal. Vinay will go by bus. So, what did you see? In the first sentence, Vinay is the name of a boy and this name is used 2 times. Now, let's read the second sentence. Vinay will go to Nepal. He will go by bus. Okay, so what is the differences between first sentence and second sentence? In first sentence, Vinay name is used 2 times, but in the second sentence, the name of Vinay, it is used. This name is used only 1 time. Okay, and instead of Vinay, which word is used? He. Okay, so he will go by bus. He will go by bus. So in this sentence, he is used इंस्टीड ऑफ नाउन. नाउन क्या है? नाउन यहाँ पे विनय है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ लिया है. वी हैव रेड ऑलरेडी दैट व्हाट इज नाउन, व्हाट इज वर्ब. ओके, एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट प्रोनाउंस. तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशंस, all are these are in the parts of speech. Okay, so parts of speech में आपने फर्स्ट में नाउन के बारे में पढ़ लिया है एंड वर्ब के बारे में पढ़ लिया है. नाउ फ्रॉम टुडे यू आर गोइंग टू रीड अबाउट प्रोनाउंस. तो प्रोनाउंस किसे कहते हैं? प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम. यू माइट हैव रेड इन हिंदी ऑल्सो दैट प्रोनाउंस. ओके, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम जो संज्ञा के बदले में यूज होता है. संज्ञा क्या है? नाउन. ओके, तो जो नाउन के बदले में, वैसे शब्द जो नाउन के बदले में यूज किया जाता है. ओके, नाउन के बदले में इंस्टेड ऑफ नाउन इफ एनी न्यू वर्ड इज यूज्ड, दैट वर्ड इज नोन एज प्रोनाउन. सो व्हाट कैन यू से द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन? What is pronoun? Words that are used in place of nouns are called pronouns. Words that are used in place of nouns are called pronouns. यानी वैसे शब्द जिनका संज्ञा की जगह पे, नाउन की जगह पे यूज करते हैं हम. Like in above sentences we have read that Vinay is the name of a boy and instead of Vinay, what did you use there? He. So he is the pronoun here. Okay, for example you can understand, suppose Ram is my friend. Ram is my friend. तो राम कौन है? राम मेरा दोस्त है. He is a naughty boy. He is a naughty boy. तो here in this sentence he किसके लिए यूज किया गया? राम के लिए. तो राम क्या है? राम संज्ञा है, नाउन है. और जब हम दूसरे सेंटेंस को बोलते हैं कि ही इज ए नॉटी बॉय, तो यहाँ पे ही किसके लिए यूज किया गया है? राम के लिए. तो ही विल बी कॉल्ड द प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस. ओके, सम मोर आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड that he is used for masculine gender. Okay, he is used for masculine gender where she is used for feminine gender. Okay, he का यूज हम कहाँ करते हैं? तो for male. Okay, when you see the name of any male, male मतलब पुरुष. अगर पुरुष का नाम आता है, किसी बॉय का नाम आता है, तो there you can use he.
instead of the name you can use the he. Okay, and when you see the name of any girl or any lady's name, okay, किसी girl या lady का नाम आपको किसी sentence में दिखता है तो instead of that noun you can use there she. Okay, so here I can tell you that he is used for masculine gender and she is used for feminine gender. ओके, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोनाउंस होते हैं जिसमें इट का भी हम यूज करते हैं, आई टी इट. ओके, एंड इट इज यूज्ड फॉर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड एनिमल्स. ऑब्जेक्ट्स मीन्स कोई भी वस्तु, किसी भी वस्तु के साथ में या किसी भी जानवर के साथ में हम इट का यूज करते हैं. देयर आर मेनी अदर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोनाउन लाइक आई, मी, we, us, you, he, him, they, them, she, her, it, etc. Okay, so there are many other examples of pronouns. So I hope my dear children all of you have understood what is pronoun. Pronoun क्या है आपने समझ लिया होगा. Words that are used in place of noun, वैसे शब्द जिनको हम नाउन के जगह पे यूज करते हैं. ओके, तो इन प्लेस ऑफ नाउन इफ यू आर यूजिंग एनी न्यू वर्ड दैट वर्ड इज नोन एज द प्रोनाउन. और प्रोनाउन देयर आर मेनी प्रोनाउन लाइक आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, दे, देम, शी, हर, इट. ओके, देयर आर मेनी pronoun. Okay, and there are also kinds of pronoun, but kinds of pronoun we will read in the next chapter or in the next class. Okay, now you understand the exercise related to the chapter. So in the first you can see tick the correct pronouns for the pictures. So the dear children, here are 6 pictures are given. You see the picture carefully and the 2 options are also given of the pronoun. So which is the correct pronoun? You see the sentence carefully and put the tick in the correct pronoun. Okay, so just I have told you that हम he का use कहाँ करते हैं. He is used for boy and she is used for girl. Okay, तो फर्स्ट पिक्चर किसका है, किसी बॉय का है. तो हम वहाँ पे देख रहे हैं देयर आर 2 प्रोनाउंस, वन इज ही स्लैश शी. ही स्लैश शी यानी एक ही है और दूसरा शी है. सो विच इज द करेक्ट प्रोनाउन फॉर दिस पिक्चर? तो दिस पिक्चर इज ऑफ ए बॉय. तो बॉय के साथ हमें ही का यूज करना है. सो वी कैन पुट द टिक ऑन ही. ओके, नाउ सेकेंड पिक्चर इज ऑफ ए लेडी. ओके, लेडी मीन्स किसी लेडी का है, औरत का है. मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि गर्ल एंड विथ लेडी वी कैन यूज शी. तो हम शी के साथ क्या करेंगे, वी कैन पुट द टिक ऑन शी. नेक्स्ट थर्ड पिक्चर इज ऑफ एन एनिमल. ओके, you can see that the animal is standing in the water. So with animal we can use it. It is used with the objects and animal. इसका यूज हम कहाँ करते हैं, इट का यूज हम एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स के साथ करते हैं. तो थर्ड पिक्चर किसका है बेटा, दिस इज द पिक्चर ऑफ एनिमल. सो यू कैन यूज इट देयर. नेक्स्ट फोर्थ पिक्चर you can see that the 2 children are standing there. So if you find 2, 3, 4 or more than that, okay, like 100, thousands, तो with that we can use they, क्योंकि they means क्या होता है, वे लोग. अब अगर 2 है तो वहाँ पे भी हम वे लोग बोलेंगे, they बोलेंगे. और if you are getting 100 and thousands, there you can also use they. ओके, सो यहाँ पे हम क्या टिक लगाएंगे, वी कैन पुट द टिक ऑन दे. नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ ए बॉय. बॉय के साथ हमें क्या लगाना है, वी कैन पुट द टिक ऑन ही. नेक्स्ट लास्ट वन इज द पिक्चर ऑफ एन एनिमल एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ ए हॉर्स. हॉर्स के साथ हम क्या लगाएंगे, इट स्लैश देम. I have told you that with animal we can use it. Okay, now you see page number 39. Okay,
in page number 39 you can see circle the pronouns to complete the sentences. So there are 8 sentences. All of you read the sentences carefully, and the 2 options of pronouns are given under bracket. So which is the correct pronoun? You put the circle in that pronoun, and which is the correct and suitable for the sentence. So the first one, give under bracket I/me. तो यहाँ पे 2 प्रोनाउन है, give I/me the book. तो क्या होगा, give I the book या give me the book? Which is the correct? Give me the book. So me में हम क्या लगाएंगे? We can put the circle, and it is already done in the textbook. Now second sentence, it/she is my book. What is a book? Book is object. Book क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, और उसके साथ हम क्या लगाएंगे? इट का यूज करेंगे. इट इज माई बुक. नेक्स्ट, हियर दे कम. हियर दे कम. नेक्स्ट फोर्थ, आस्क हर टू हरी अप. आस्क हर टू हरी अप. फिफ्थ, कम विथ अस. 2 options are given. So which is the correct? You put the circle in the correct pronoun. So come with us. हमारे साथ आओ. Come with us. Next, they are my pets. And sentence 7, I found the scarf. Okay, I found the scarf. It belongs to you. The last one, it belongs to you. So in this way we can put the circle in the correct pronouns. Now you can see the C. Fill in pronouns for the underlined words. Okay, fill in pronoun. So in first sentence noun is used, and we have to use pronoun instead of noun. Like in the first sentence, Rima is my sister. रीमा इज माई सिस्टर. रीमा मेरी बहन है. तो रीमा की जगह पे हमें कौन सा प्रोनाउन यूज करना है? रीमा इज अ नेम ऑफ ए गर्ल. तो गर्ल के लिए हम क्या लगाएंगे? वी कैन यूज शी. सो रीमा इज माई सिस्टर. शी सिंग्स वेरी वेल. वो बहुत अच्छा गाती है. तो इन दिस सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट रीमा. तो हमने रीमा के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करा है? शी. नेक्स्ट सेकेंड, मोहित इज माई कजन. ओके, मोहित इज माई कजन. मोहित मेरा कजन है. ही इज 10 years old. सो मोहित इज अ नेम ऑफ ए बॉय, एंड फॉर बॉय व्हाट इज यूज्ड हियर? ही. नेक्स्ट, टुडे इज संडे. टुडे इज संडे. इट इज ए हॉलीडे. इट इज ए हॉलीडे. नेक्स्ट, दिस इज माई फादर. दिस इज माई फादर. एंड फादर क्या है? मेल है. तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? ही. ही इज माई, दिस इज माई फादर. ही इज अ क्रिकेटर. ओके. नाउ लास्ट वन, द चिल्ड्रेन आर इन ए टॉय ट्रेन. द चिल्ड्रेन आर इन ए टॉय ट्रेन. बहुत सारे बच्चे हैं, एंड ऑल द चिल्ड्रेन आर सिटिंग इन ए टॉय ट्रेन. सो बहुत सारों के लिए हम क्या यूज करेंगे? दे का यूज करेंगे. दे आर एंजॉइंग द राइड. उन्हें बहुत मजा आ रहा है. दे आर एंजॉइंग द राइड. सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड पेज नंबर 39. ओके, नाउ सी द पेज नंबर 40. ओके, एंड यू कैन सी हियर, सर्कल द करेक्ट प्रोनाउंस इन द ब्रैकेट्स. सर्कल द करेक्ट प्रोनाउंस इन द ब्रैकेट्स. जो करेक्ट प्रोनाउन है उसमें हम क्या लगाएंगे? सर्कल बनाएंगे. सर्कल द करेक्ट प्रोनाउंस इन द ब्रैकेट. इन द ब्रैकेट देयर आर 2 options are given, but which is the correct pronoun? According to the sentence, which is the correct pronoun? In the correct pronoun you have to put the circle. So my aunt is a doctor. My aunt is a doctor. And डॉक्टर कौन है? aunt है. She is a lady. So यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? she प्रोनाउन का यूज करेंगे. she works in a hospital. Okay. Now second sentence,
इरा एंड आई आर फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पे दो लोग हैं। देन व्हाट कैन वी यूज द प्रोनाउन अस और वी? वी go for long walks. Okay, we go for long walks. Next, third, can you tell me the way to Kailash colony? Okay, can you tell me the way to Kailash colony? तो यहाँ पे हम me pronoun का यूज करेंगे। And next one is fourth one, look at the hut. Okay, look at the hut. It is made of bricks and straw. ये क्या का बना है? It is made of bricks and straw. Bricks means ईंट and straw means घास फूस। तो ये किस चीज की बनी हुई है? ये bricks and straw की बनी हुई है। तो we are talking about hut. So here we can use it. Next, Meena loves to scat. मीना लव्स टू स्कैट, यानी मीना को क्या पसंद है? स्कैट करना पसंद है। शी स्कैट्स इन द पार्क एवरी डे। वेयर डज शी स्कैट्स? शी स्कैट्स इन द पार्क एवरी डे। सो मीना इज अ नेम ऑफ ए गर्ल एंड फॉर मीना वी कैन यूज हियर शी। नेक्स्ट यू कैन सी अमित इज स्टडिंग। अमित इज स्टडिंग। अमित इज अ नेम ऑफ ए बॉय, सो हम यहाँ पे ही का यूज करेंगे। ही हैज ए टेस्ट टुमारो। ही हैज ए टेस्ट टुमारो। नेक्स्ट, द चिल्ड्रेन आर इन अ बुक शॉप। ओके, द चिल्ड्रेन आर इन अ बुक शॉप। बहुत सारे बच्चे हैं जो बुक शॉप पे खड़े हैं। द चिल्ड्रेन आर इन अ बुक शॉप। They are buying books. I have told you that if you get more than one, एक से अधिक जब आपको दिखे तो वहाँ पे हमें they pronoun का यूज करना है। And the last one, a clock has a face. A clock has a face, but it cannot smile. Okay, a clock has a face, but it cannot smile. तो क्लॉक यहाँ पे घड़ी क्या है? दिस इज द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के साथ और एनिमल के साथ हमें क्या लगाना है? इट का यूज करना है। सो वी कैन यूज इट हियर। सो इट विल बी द करेक्ट प्रोनाउन फॉर द क्लॉक। सो आई होप माय डियर चिल्ड्रेन ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट इज प्रोनाउन एंड हाउ कैन वी यूज इट। ओके, सो थैंक यू।